Hello, dear students. Let us continue with our discussion on hydroelectric power plants. First of all, let me discuss what are the basic topics today that we are going to discuss. First of all, we are going to discuss the classification of hydroelectric power plants. Then we will discuss about various kinds of turbines that are used in the power plants, their classification and what type of turbines. Basically there are 4 to 5 types of turbines and we are going to discuss only 3 types, and finally we will close off with the governing of those turbines, basically how to control the speed of water that is falling onto the blades of the turbine. So here, first of all, up till now we have discussed various kinds of hydroelectric power plants. And how can we classify them? We can classify them first of all according to the availability of head. There can be high head power plant, then that means the water is on a higher level, and then we have medium head power plants, low head power plants. According to the nature of the load, base load power plants, peak load power plants. Then we have runoff river power plants with power plants with storage reservoirs, which are the most common in Indian scenario. Then we have pumped storage power plants, and these are also very effective power plants, pumped storage power plants. Then we have mini and micro hydro power plants, which are very much encouraged nowadays to be employed, because all these power plants, the larger size power plants, take too much time, or as we have already discussed that the gestation time is too much high, and it takes a long time in order to build these power plants. So nowadays the concentration is more towards building smaller size power plants. Okay, so high head power plants are having a head of more than 100 meters, and the water is stored in lakes, or reservoirs are made, and through tunnels the water goes to the valve house, and then it is made to fall from a height through the penstocks, and the penstocks lead to the powerhouse or the turbines, and the turbines then rotate. So the turbine in over here, the type of turbine that is being used employs Pelton wheel. ये हम आगे डिस्कस करेंगे. 3 टाइप के टर्बाइंस बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज होते हैं. पहले का नाम है पेल्टन व्हील, दूसरे का नाम है कैपलान, तीसरे का नाम है फ्रांसिस. ये तीनों जो टर्बाइंस हैं ये उनके इन्वेंटर्स के नाम के ऊपर बेस्ड हैं. ठीक है, तो पेल्टन व्हील बेसिकली लार्जर टर्बाइन होता है, लार्जर व्हील होता है, वो हायर हेड के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं. ठीक है, फ्रांसिस जो है मीडियम टू हाई, और फिर कैपलान जो है लोअर हेड्स के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, नाउ तो सिमिलरली, अच्छा ये मैंने मार्क इसलिए किया हुआ है, ये जो मार्किंग की हुई है, यू हैव टू मेक एन असाइनमेंट. एंड पहले ये सुन लें कि आपको एक असाइनमेंट बनाना है, जो कि असाइनमेंट नंबर 1 होगा, और उसके अंदर ये पूरी चीज़ आपको लिखनी है. जो आज का जो वीडियो है इसका पूरा एक आपको नोट्स बनाने हैं बेसिकली अपने वर्ड्स में. ठीक है, जो आपको जैसे समझ में आ रहा है ये चीज़, उसके हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं अपने वर्ड्स में. ठीक है, यूजिंग दीज डायग्राम्स. ओके, सो यू मस्ट नो हाउ टू ड्रॉ दीज डायग्राम्स एंड हाउ टू राइट देम इन वर्ड्स. ठीक है, फिर लो हेड पावर प्लांट्स और मीडियम हेड पावर प्लांट्स होते हैं. मीडियम हेड पावर प्लांट्स देखो हाइट कम है, और इसमें अक्सर क्या करते हैं कि यहाँ पर रिजर्वायर है, उसके बाद यहाँ पर आई एम पॉइंटिंग इट राइट नाउ हियर, यहाँ पे एक छोटा सा हम एक रिजर्वायर टाइप को बनाते हैं, मैन मेड, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अ 4 बे, और उस 4 बे में के ऊपर ही सर्ज टैंक रहेगा. ठीक है, ताकि जो इसके अंदर जो प्रेशर बन रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके. ठीक है, और फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे फ्रांसिस टर्बाइन यूज़ किया जाता है. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग बाद में देखेंगे. ठीक है, फ्रांसिस टर्बाइन एंड पेल्टन व्हील. लो हेड पावर प्लांट्स में बेसिकली इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इन विच व्हाट वी डू इज, एक रन मतलब रिवर फ्लो कर रही है, उसके ऊपर हम डैम नहीं बनाएंगे बेसिकली.
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हाइट ऑटोमेटिकली क्योंकि टॉप व्यू है तो हाइट नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। we what we do is we provide a canal from this side and we create a forebay. What is a forebay, by the way? Forebay is a man-made or a artificially made reservoir, small pondage, ठीक है। तो उसके ऊपर यहाँ पे हम पावर हाउस लगाएंगे। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है वो सब चीज़ें होंगी, पेन स्टॉक्स एंड एवरीथिंग, एंड देयर इज़ अ हाइट अवेलेबल, हेड अवेलेबल ओवर हियर, और फिर पानी जो है टेल रेस के थ्रू मेन रिवर में वापस डाल दिया जाता है। द हाइट ओवर हियर इज़ लो, ठीक है। तो दीज आर लो हेड पावर प्लांट्स, और यहाँ पे हम कैप्लान टाइप का टर्बाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। देन वी हैव बेस लोड प्लांट्स एंड पीक लोड प्लांट्स। बेस लोड प्लांट्स बेसिकली ये वो प्लांट्स हैं जो हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है। और बेस, जहाँ हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि बेस लोड प्लांट्स होते हैं जो हमेशा चलेंगे, they provide power constantly to the grid. If our hydropower plant is such that it is providing constant supply to the grid, then it becomes a base load power plant. और certain times जो plants होते हैं वो peak load power plants होते हैं, जो in conjunction with thermal stations हम लोग use कर रहे होते हैं, okay? और वो कुछ टाइम के लिए, for example in a day, if the peak occurs in a day time, ठीक है, और रात के टाइम में जो है वो पीक लोड नहीं है ऑब्वियसली, तो रात के टाइम में वर्क नहीं करेंगे, दिन के टाइम में वर्क करेंगे, ठीक है। और ये होता है इन कंजंक्शन विद थर्मल पावर प्लांट्स ऑलवेज, ओके। देन वी हैव another classification, that was the रन ऑफ द रिवर, या रिजर्वायर बेस्ड या पंप स्टोरेज बेस्ड, ठीक है। तीन टाइप का था। रन ऑफ द रिवर मीन्स कि रिवर रन कर रही है, उसी के ऊपर हमने पावर प्लांट को प्लांट किया है। अब उसका हम पॉन्डेज बनाएं, ठीक है, या ना बनाएं, या सिर्फ और सिर्फ रन ऑफ द रिवर को ही यूज़ किया जाए, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? डेफिनेटली क्वांटिटी ऑफ फ्लो पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, या तो हम डायरेक्टली फ्लो को ही यूज़ कर लें, फ्लो ऑफ द वाटर को यूज़ कर लें, या फिर हम वी बिल्ड अ स्मॉल रिजर्वायर पॉन्ड, ठीक है। क्यों? कभी कभी क्या होता है कि हमने एक पावर रेटिंग के लिए पावर प्लांट को बिल्ड किया, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि पानी ज़्यादा आ गया, ठीक है, यानी कि पावर प्लांट की लिमिट से ओवर पानी है, तो वी क्रिएट अ पॉन्डेज सो दैट द वाटर कैन बी स्टोर्ड फॉर दैट टाइम। जो एक्सेस वाटर है उसको हम स्टोर कर सकें, ठीक है। सो दैट बिकम्स रन ऑफ रिवर प्लांट विद पॉन्डेज, ठीक है, ओके। नाउ अच्छा, आप इसको पढ़ेंगे तो मेरी जो बात है उससे आप सहमत हो जाएंगे। जस्ट रीड थ्रू इट, राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। देन वी हैव हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स विद स्टोरेज रिजर्वायर। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। बड़े बड़े प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े रिजर्वायर्स हैं, और हायर हाइट्स पे हम लोग उसको यूज़ करते होते हैं। और इसके अंदर क्या करते हैं बेसिकली कि रेनी सीजन में वाटर को रिजर्वायर से पूरा स्टोरेज करके ऊपर तक फिल अप कर लिया जाता है, और जब ऑफ सीजन होता है, जब रेन नहीं हो रही होती है, तो उसी रिजर्वायर के पानी को कंटिन्यूस फ्लो के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टली रिजर्वायर के पानी को ही यूज़ कर सकते हैं पावर जनरेशन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल टेहरी का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसको बेसिकली जो डैम खड़ा किया गया है उसी के अंदर ही पूरा का पूरा पावर प्लांट है, ठीक है। और थ्रू आउट द ईयर उसी रिजर्वायर के पानी को यूज़ किया जाता है जनरेशन के लिए डायरेक्टली। यानी डायरेक्टली यूज़ करने का मतलब ये है कि रिजर्वायर के पानी को डायरेक्टली यूज़ किया जाए जनरेशन के लिए, या फिर साइड से निकाला जाए पानी को और फिर उससे जनरेट करके फिर वापस से टेल रेस में दिया जाए। ये दो तरीके हो सकते हैं जब हम डायरेक्टली रिजर्वायर के पानी को यूज़ कर रहे हैं पावर जनरेशन के लिए। देन वी हैव pumped storage power plants. These are another very efficient way of generating electricity. होता क्या है कि हमारे पास यहाँ पे हेड है, ठीक है, और देयर इज अ पॉन्डेज और रिजर्वायर,
ठीक है, हमने यहाँ पे पेन स्टॉक यूज़ किया पानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इन व्हेन वी आर हैविंग लोड्स. ओके, वी हैव टू सप्लाई लोड इलेक्ट्रिसिटी टू द लोड. तो यहाँ पे पावर स्टेशन यूज़ होता है. पावर स्टेशन में हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड एंड सप्लाइंग एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द लोड. लेकिन इन ऑफ peak zone, like for example night time, what we do is we transfer this water through these pipelines back to this reservoir. ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी उसी इलेक्ट्रिसिटी को दोबारा से ग्रिड से लेना पड़ेगा ताकि यहाँ की मोटर पंप करे इस पानी को बैक टू दिस. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता. efficient way, it is very efficient way, and 70% of the energy that is being lost in pumping the water back to the head pond is recovered. ठीक है, तो एक तो चीज़ इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास जो यहाँ पे पानी ऑफ सीजन में कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ये इससे हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे पानी स्टोर ऑलरेडी कर रखा है. इसी को हम बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं, साइकिल बन जाएगा, राइट. और फिर कैपेसिटी इस पावर प्लांट की इंक्रीज कर जाती है. ठीक है, एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाती है. अच्छा, होता क्या है कि यहाँ पे जो टर्बाइंस और जनरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, टर्बाइंस और जनरेटर यूज़ हो रहे हैं. पानी यहाँ से आया, इट विल रन द टर्बाइन, टर्बाइन विल रन द जनरेटर, राइट, एंड इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. जब हम इसको उसी टर्बाइन को उसी जनरेटर को हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जनरेटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन. इफ वी प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट विल टर्न इनटू अ मोटर. तो जनरेटर विल बी अगेन कैन बी यूज्ड अगेन एज अ मोटर ऑल्सो. तो वो मोटर की तरह यूज़ करेंगे और टरबाइन के थ्रू. अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप का टरबाइन यूज होता है. फिर ना ही पेल्टन व्हील जो अभी डिस्कस किया हमने, कपलान, और तीसरा कौन सा था, पेल्टन व्हील, कैपलान और फ्रांसिस. ये 3 टरबाइन हमने अभी तक वर्ड यूज किए हैं, राइट. इनके अलावा चौथा होता है जिसको हम बोलते हैं डेरियाज टाइप ऑफ टरबाइन. डेरियाज ये भी एक साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम के बेस पे ये टरबाइन है. तो वो वाला टरबाइन यहाँ पे यूज़ किया जाता है ताकि उस पानी को दोनों तरफ फ्लो किया जा सके थ्रू दैट टरबाइन. ओके, सो पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट्स ऑलवेज यूज डेरियाज टाइप ऑफ टरबाइन, डेरियाज व्हील और डेरियाज टरबाइन. ठीक है, तो इस डायग्राम को आप सही से बनाएं और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन में मार्क किया, ये काफ़ी है आपके लिए. Now we have mini and micro hydro power plants. ये बहुत छोटे होते हैं, यानी कि जैसे 5 मीटर टू 20 मीटर की हाइट का जो पावर प्लांट होगा वो 1 मेगावाट टू 5 मेगावाट ऑफ पावर जनरेट कर पाएगा, एंड इट इज़ नोन एज मिनी पावर प्लांट. उससे छोटा माइक्रो पावर प्लांट जिसकी हाइट लेस देन 5 मीटर्स होती है और वो 1 किलोवाट टू 1 मेगावाट हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं. सॉरी आई एम गेटिंग रॉन्ग, 0.1 मेगावाट. ओके, यहाँ पे 100 किलोवाट कह सकते हैं इनटू 1 मेगावाट. ठीक है, सो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइंस. नाउ वी आर हैविंग हाइड्रोलिक टर्बाइंस. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टर्बाइंस. बेसिकली हाइड्रोलिक टर्बाइंस के क्या मतलब है? दोज टर्बाइंस which convert the potential of energy of water into shaft work, which in turn rotates the electrical generator coupled to it in producing electric power. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम टर्बाइंस को यूज़ कर रहे हैं. टर्बाइन जनरेटर को रोटेट कराएगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. Before going to these 3 types of turbines that I was talking about, that means the Pelton wheel, the Kaplan turbine and the Francis turbine, let us see basic classification. तो classification भी इस टर्बाइंस का भी क्लासिफिकेशन कई तरीके से हो सकता है. सबसे पहले तो हेड के टर्म्स में, ठीक है. तो लो हेड टर्बाइंस जो हैं, देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको.
वहाँ पे जो क्लासिफिकेशन पहले किया है हमने वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स का किया है, ठीक है। और वहाँ पे भी हाई हेड था, मीडियम हेड था, लो हेड था, ठीक है। यहाँ पे हाई हेड और लो हेड टरबाइन के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लो हेड जो होगा वो 2 से 15 मीटर, मीडियम हेड 16 से 70 मीटर, हाई हेड 71 to 500 मीटर्स, वेरी हाई हेड अबव 500 मीटर्स लिखा हुआ है, राइट। तो लो हेड के लिए कैप्लान या प्रोपेलर टरबाइंस यूज होते हैं। एक और टरबाइन होता है जो कि कहलाता है बल्ब टरबाइन, अगर कभी आपको मौका लगे देख लेंगे बाद में। लेकिन तो कैप्लान या प्रोपेलर टाइप का टरबाइन यूज करते हैं। मीडियम हेड के लिए वी यूज कैप्लान और फ्रांसिस, हाई हेड्स के लिए वी यूज फ्रांसिस और पेल्टन टरबाइंस। फॉर एग्जांपल अगर आप टेहरी का देखेंगे तो वहाँ पे फ्रांसिस टाइप ऑफ टरबाइन यूज हो रहा है। वेरी हाई हेड के लिए हम लोग पेल्टन व्हील्स यूज करते हैं क्योंकि फ्रांसिस टरबाइन उतनी एफिशिएंसी नहीं दे पाता है, ठीक है। डेरियाज टरबाइंस वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमें पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट्स बनाने होते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। लेट्स लीव दिस डिस्कशन। नेम ऑफ द ओरिजिनेटर के टर्म्स में मैंने बताया था, क्योंकि सारे टरबाइंस किसी न किसी ने इन्वेंट किए हैं, तो उन्हीं के नाम पे ये टरबाइंस हैं। पेल्टन एक जो था वो यूएस का था, लेस्टर एलन पेल्टन, उसने ये इम्पल्स टाइप ऑफ टरबाइन यूज़ किया था। ये भी हम आएंगे कि इम्पल्स टाइप ऑफ टरबाइन और रिएक्शन टाइप ऑफ टरबाइन कौन से होते हैं। पेल्टन व्हील इज बेसिकली इम्पल्स टाइप ऑफ टरबाइन। फ्रांसिस, कैप्लान एंड डेरियाज ये तीनों जो हैं ये रिएक्शन टाइप ऑफ टरबाइन होते हैं। ओके, तो फ्रांसिस भी और कैप्लान भी और डेरियाज ये तीनों ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बनाया था, ये टरबाइंस बनाए थे, राइट। तो now coming to the third classification, that is the according to the nature of working on the blades, ठीक है। तो impulse type of turbine में basically क्या होता है कि the potential energy of water is converted into kinetic energy, ठीक है, और वो full kinetic energy के साथ नोजल के थ्रू पास कराते हैं पानी को, और वो जाके गिरता है बकेट के ऊपर, ठीक है ना। अब ये क्या आपको कैसे समझ में आएगा, इसको थोड़ा सा बनाता हूँ हल्का सा, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल वन सेकेंड, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे कहने मतलब ये कि एक हाइट से पानी आया, राइट, देन व्हाट वी डू इज वी क्रिएट अ नोजल ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ। इसी काइनेटिक एनर्जी के साथ पानी यहाँ पे निकलेगा एंड इट विल फॉल ऑन अ बकेट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, और ये बकेट जो लगी होगी ये एक पूरे व्हील के साथ लगी होगी, अटैच होगी, और व्हील इज अटैच टू अ शाफ्ट। दिस शाफ्ट इज बेसिकली, अब ये जब ये इसके ऊपर फोर्स लगेगी इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, then this shaft will also start rotating, which will in turn rotate the turbine, ठीक है। Now in all this part the water is interacting with air, ठीक है, और ये नॉर्मल प्रेशर पे है पानी, ठीक है। तो द फ्री जेट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, द फ्री जेट इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिफोर एंड आफ्टर इट स्ट्राइक्स द वेन्स। ये जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं आपको, दिस इज कॉल्ड अ वेन, ठीक है। तो ये टाइप कहलाता है, ये टरबाइंस कहलाते हैं प्रेशरलेस और इंपल्स टरबाइंस, ठीक है। तो पेल्टन व्हील इस कैटेगरी का टरबाइन है। रिएक्शन टरबाइन में बेसिकली जो पूरा फ्लो ऑफ वाटर है इट इज इनसाइड अ ट्यूब, वाटर ट्यूब, यानी हाइट से जो पानी गिरा और उसके बाद जो टरबाइन से जो पानी इंटरेक्ट किया और उसके बाद जो टेल रेस में पानी चला गया, तो ये पूरा का पूरा पानी का जो प्रोसेस है इट इज इनसाइड अ ट्यूब, देयर इज नो पार्ट ऑफ एयर देयर, ठीक है। तो इस टाइप के टरबाइन को हम बोलते हैं रिएक्शन टरबाइन। तो आई विल रीड इट आउट। इन रिएक्शन टरबाइंस द एंटायर फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हेड टू द टेल वाटर टेक्स प्लेस in a closed contact
or closed pipeline system which is not open to the atmosphere at any point in its passage. तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वाटर की, इट इज कन्वर्टेड, some part it's converted into kinetic energy and most of its part converts into the pressure energy. ठीक है, तो जो रनर है, अच्छा अब रनर क्या चीज है, ये तो शाफ्ट वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, ये वेन हो गया, एंड ये जो गोला मैंने बनाया दिस इज नोन एज द रनर. ठीक है, रनर इज दैट पार्ट टू विच द वेन्स आर अटैच्ड एंड इट रोटेट्स द शाफ्ट. ठीक है, द रनर कन्वर्ट्स बोथ द काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. तो इस टाइप ऑफ टरबाइन ये कहलाता है रिएक्शन और प्रेशर टरबाइन. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि दो टाइप क्या है. ऐसा सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, सिंपल वर्ड्स में अगर पानी नॉर्मली हवा के अंदर आ रहा है and it is interacting with air in any part of its motion, then it is basically an impulse type of turbine. और अगर पानी close contact में है और it is not interacting with air throughout the process, then it becomes a reaction turbine. तो Pelton field जो होता है, Pelton wheel based turbine जो होते हैं, those are basically impulse type of turbines. and Francis, Propeller, Kaplan, Darius, ये सब जो turbines हैं, क्योंकि पानी पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ कंडक्ट में रहता है, देन इट बिकम्स दीज टाइप ऑफ टर्बाइंस आर नोन एज और कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रिएक्शन टाइप ऑफ टर्बाइंस और प्रेशर टर्बाइंस. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. ठीक है, अब फ्रांसिस टर्बाइन में हमने देखा कि नहीं, हमें अभी देखा नहीं है, सॉरी. तो पानी जो वेन्स पे गिर रहा है आके, ठीक है, वो किस तरीके से गिर रहा है, यहाँ पे मतलब ये है वाटर हाउ द वाटर इज फॉलिंग ऑन द वेन्स ऑफ द टर्बाइन. ठीक है, सो व्हाट फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक ओवर हियर द फ्रांसिस टर्बाइन, द वाटर फॉल्स रेडियली. ठीक है, या फिर आप यहाँ पे देखें ये मिक्स फ्लो लिखा हुआ है. अब मिक्स फ्लो समझाता हूँ आपको. ठीक है, मिक्स फ्लो तो होगा क्या. अच्छा, इससे पहले, इस डिस्कशन से पहले नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ पहले आपको. अकॉर्डिंग टू द एक्सेस ऑफ टर्बाइन शाफ्ट, दो टाइप के टर्बाइन शाफ्ट हो सकते हैं. या तो टर्बाइन हम एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट पे रखें, ठीक है, शाफ्ट हॉरिजॉन्टल है, और तो व्हील कैसा हो जाएगा, वर्टिकल, राइट. और दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमारे शाफ्ट वर्टिकल है. पिक्चराइज करिए इस चीज को कि हमारा शाफ्ट वर्टिकल है, ठीक है, और जो व्हील है उसके चारों तरफ है. तो वो कुछ इस टाइप से लगेगा, राइट. साइड से हम देखेंगे तो हमें कैसे लगेगा कि व्हील ये है और ये शाफ्ट है उसकी, राइट. और इसी चीज को हम टॉप से अगर देखेंगे तो ये शाफ्ट हो गई और दिस विल बी व्हील. ठीक है, और अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस टर्बाइन है तो ये शाफ्ट हो जाएगी और ये व्हील हो जाएगा, राइट. गुड, आई थिंक दिस इज क्लियर. तो अब अगर हमारे पास पानी साइड से आके लगेगा और इसको रोटेट कराएगा, इस केस में रोटेट करा के और पानी नीचे गिर जाए, ठीक है, तो वाटर इज कमिंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. ठीक है, इट इज कमिंग परपेंडिकुलर टू एक्सिस, बट वाटर इज फॉलिंग टुवर्ड्स द एक्सिस. ठीक है, so this type of flow of water will be known as mixed flow. ठीक है, दूसरा केस क्या है, that is a tangential flow. Tangential flow means कि अगर देखो यहाँ पे इस केस में tangential flow होगा क्योंकि पानी यहाँ पे आएगा, राइट, और ये इस टाइप से रोटेट करेगा, इस टाइप से यहाँ पे रोटेट करने लगेगा. तो इस व्हील के टेंजेंशियली हम पानी डाल रहे हैं, राइट.
So this type of water flow is known as tangential flow. Then we have axial flow. ठीक है, अब axial flow क्या चीज है? Axial flow का मतलब ये है कि पानी जो गिरे वो इस एक्सिस के पैरेलल गिरे. ठीक है, if water is falling like this, sorry, if water is falling like this and the turbine is rotating, ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऑफ पानी क्या है? इट इज एक्सियल फ्लो. ठीक है, पानी इधर से आया और ऐसे गया तो ये दोनों मिक्स फ्लो हो गया. ठीक है, पानी ऊपर से नीचे आया देन इट इज एक्सियल फ्लो. ठीक है, लेकिन अगर पानी टेढ़ा आया, आई मीन टू से कि इफ वाटर इज फॉलिंग लाइक दिस देन what it is with an angle, so it is known as the diagonal flow. ठीक है, तो water according to the flow of the water or the how the water is reaching the blades of the turbine, this is the classification. ठीक है, तो या तो मिक्स फ्लो होगा, या टेंजेंशियल फ्लो होगा, या एक्सियल फ्लो होगा, या फिर डायगोनल फ्लो होगा. अब टरबाइन के एक्सिस के टर्म्स में तो मैं बता ही चुका हूं कि दो टाइप का होगा. दैट इज दी टरबाइन की जो शाफ्ट है या तो वर्टिकल होगी या हॉरिजॉन्टल होगी. पेल्टन व्हील जो होता है उसकी शाफ्ट हॉरिजॉन्टल होती है और बाकी जितने भी टरबाइंस होते हैं मोस्ट ऑफ देम उनकी जो शाफ्ट होती है वो वर्टिकल होती है. You can leave out this point. If you want to study this, you can study, but you can leave out for right now. Basically, this describes the specific speed of the turbine according to the head and the power और working speed क्या है. इन सब terms में उसकी एक speed निकल के आती है. So we have slow turbines, fast turbines. ठीक है, पेल्टन जो है वो थोड़ा स्लो टरबाइन होता है, फ्रांसिस मीडियम, कैप्लान वेरी हाई स्पीड टरबाइंस होते हैं. ठीक है, तो इसलिए वो स्पेसिफिक स्पीड की बात कर रहे हैं. नाउ द टरबाइन साइज की अगर हम बात करें तो टरबाइन साइज जो होता है वो हेड के टर्म्स में बात कर सकते हैं हम उसको. तो हाई हेड के लिए, बहुत हाई हेड के लिए हमारे पास पेल्टन है, मीडियम हेड के लिए फ्रांसिस है और लो हेड के लिए कैप्लान है. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. Now coming to the Pelton wheel. Pelton wheel का स्ट्रक्चर ये है. ठीक है, जैसा अभी मैं थोड़ा सा बना रहा था. तो what is happening over here कि यहाँ पे बकेट है और यहाँ पे ये नोजल है जिससे हमारा पानी निकल के इसके ऊपर गिरेगा और ये इसको रोटेट कराएगा. राइट, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है यहाँ सामने से अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक स्प्लिटर है, यानी बकेट ये गहराई है. यहाँ से if I do it like this, ये गहरा है ऐसे, ये बकेट टाइप का स्ट्रक्चर है. पानी इसके ऊपर से टकरा के बाहर की तरफ फ्लो कर जाएगा, नीचे गिरेगा. ओके, आई होप ये समझ में आ रहा है. ठीक है, लाइक दिस. दूसरा एंगल है ये दिखाने का. डोंट गो इनटू द मैथमेटिक्स ऑफ इट. बस पानी यहाँ से आया, ये इधर की तरफ और इधर की तरफ स्प्लिट करेगा. लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे हो सकती है कि पानी जब फटेगा दो हिस्सों में, ठीक है, इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, तो इट विल गो बैक, द वाटर विल गो बैक ऑफ कोर्स. सो व्हाट कैन हैपन? इट कैन हैपन दैट इट मे स्ट्राइक बैक, जैसे यहाँ पे टकराया इट विल स्ट्राइक बैक टू दिस ब्लेड. ठीक है, इसमें भी टकरा सकता है वो पानी ना. सो इट इज डिजाइन इन सच अ मैनर दैट इट डज नॉट स्ट्राइक दिस ब्लेड. अगर ये स्प्लिटिंग नहीं करेंगे तो वो डेफिनेटली स्ट्राइक कर जाएगा इससे. तो ताकि उसके प्रेशर को कम किया जा सके इसलिए वी स्प्लिट दैट वाटर इनटू टू पार्ट्स. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. सो यू हैव टू डिस्कस ऑल दिस इन योर ओन वर्ड्स. ओके, डोंट गो इनटू द मैथमेटिक्स. व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे तो एक ही स्फीयर नजर आ रहा है आपको, एक ही स्फीयर और डिफ्लेक्टर, ये पूरा आर्किटेक्चर होता है इसका, है ना. नॉर्मली क्या करते हैं, मोर देन वन नोजल देते हैं लाइक दिस. 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नोजल्स हैं. राइट, और चारों की चारों हम यूज कर रहे हैं इस रनर को रोटेट कराने के लिए.
ठीक है, विच टर्न्स दिस शाफ्ट। अब हमें पावर कम करनी है, कंजप्शन कम, मतलब जनरेशन कम करना है, या लोड की रिक्वायरमेंट कम है। व्हाट विल डू इज, ये हम इस स्पीयर को बंद करेंगे, आगे धकेलेंगे ताकि पानी फ्लो ना करे। ठीक है, एज वी गो ऑन क्लोजिंग दिस, द वाटर प्रेशर विल और द वाटर एनर्जी विल फॉल, और उसकी वजह से इसकी स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो पावर जनरेशन कम हो जाएगा। राइट, नाउ वी हैव फ्रांसिस टर्बाइन। फ्रांसिस टर्बाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो इफ यू सी ओवर हियर, फ्रांसिस टर्बाइन का कैसा है, मिक्स्ड फ्लो था। ठीक है, तो अगर मैं दो एंगल से दिखाता हूं आपको, एक तो ये एंगल है इस तरीके का, और ये देखिए आप, दोनों कंबाइंड वे में देखते हैं। पानी यहां से आया, ठीक है, और ये इसमें रोटेट कराएगा। तो ये साइड देखो आप, चौड़ी है जो कि ये वाली साइड है, और ये वाली पतली है जो कि ये वाली साइड है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स हैं, दो टाइप ऑफ वेन्स हैं। एक वेन ये वाला है जो कि मूवेबल है, ठीक है, और एक वेन है जो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, वो इस तरीके से नजर आ रहा है। ठीक है, ये टरबाइन इस तरीके का होता है कि यहाँ से ऊपर से पतला होगा और नीचे से चौड़ा होगा। ठीक है, पानी आएगा, इसके ऊपर गिरेगा। ठीक है, पानी बेसिकली वाटर इज कमिंग लाइक दिस एंड फॉलिंग लाइक दिस, तो मिक्स्ड फ्लो ऑफ वाटर है। ठीक है, और दूसरा जो टरबाइन क्या कह रहे थे हम, कैप्लान, उसका जो टरबाइन होता है वो नीचे होता है थोड़ा, तो उसके ऊपर जो पानी गिरता है दैट इज ऑलवेज एक्सियल इन नेचर। तो यहाँ पे वाटर इज कमिंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द टरबाइन एंड फॉलिंग पैरेलल टू द एक्सिस। ठीक है, इनटू द टेल रेस। तो यहाँ पे ये जो गाइडिंग वेन्स होती हैं, ये क्या कर रही होती हैं, द वर्क ऑफ इट इज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द टरबाइन। ठीक है, and to give it a more picturesque view, I will show you one more figure like this. See over here, don't go into the mathematics, just write down what you are understanding from the text of the book. ये बॉटम से व्यू लिया गया है, देखिए आप। तो ये वो पाइपलाइन है जो मैं दिखा रहा था आपको, and these are the guiding veins. These red are the guiding veins that guide the water into the turbine. देखो ये टरबाइन की वेन से अंदर जो कि फिक्स्ड होती हैं। जब पानी इसके ऊपर गिरेगा तो ऑब्वियसली इट विल रोटेट। सो द वाटर फ्लो इज द परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द टरबाइन एंड वाटर विल फॉल एक्सियली। राइट, अब देखिए कितना बड़ा, ये छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये फिगर ये दिखाने का मकसद ये है कि देखो गाइडिंग वेन्स कितनी बड़ी है, एक आदमी के बराबर एक गाइडिंग वेन है। ओके, दिस इज हाउ बिग दीज टरबाइंस आर बेसिकली। ओके, let's move on to the Kaplan turbine. The Kaplan turbine is somewhat below the level. ठीक है, ये थोड़ा प्रोपेलर टाइप ऑफ टर्बाइन है। Let's not discuss this. Let's come to this one, Kaplan turbine. Okay, इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन तकरीबन सेम ही होगी। ठीक है, प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर भी गाइडिंग वेन्स होंगी जैसा कि फ्रांसिस वाले में थी, लेकिन ये थोड़ा नीचे है। तो जो वाटर गिरेगा, द वाटर विल बी, द फ्लो ऑफ वाटर दैट इज फॉलिंग ऑन टू द ब्लेड्स ऑफ द टरबाइन विल बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द टरबाइन। ठीक है, एक्सिस कौन सा है, ये वाला एक्सिस। ओके ओके, सिमिलरली इधर ये कैप्लान टरबाइन का रोटर है, ये जिसके ऊपर ब्लेड्स वेन्स हमारी लगी हुई हैं। तो सिमिलर स्ट्रक्चर देख लीजिए, जैसा हमारे पास वो था फ्रांसिस टरबाइन था, वैसे ही हमारा ये है, लेकिन बस क्या है कि इट इज यूज्ड फॉर लोअर हेड्स। ओके, सो द स्ट्रक्चर इज सच दैट इट कैन हैंडल लोअर हेड और द वाटर्स फ्रॉम द लोअर हेड्स। तो यहाँ पे देखो ये वेन गाइड्स नजर आ रही हैं आपको, गाइड वेन्स है, और ये नीचे का पंखा है एक तरीके से, यह टरबाइन का रोटर है। ठीक है, और ये जो पोर्शन है दैट इज दिस इज ए शाफ्ट। ओके, जो कि टरबाइन को जो कि जनरेटर को रोटेट कराएगा। ओके, नाउ हियर
लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज द गवर्नर, ठीक है, जो कि इस पेल्टन व्हील में इस जो स्पीयर था हमारे पास और जो नोजल थी उसको बंद खोल करने का जो मैकेनिज्म है कि ये कैसे खुलेगा और कैसे बंद होगा, राइट। सो लेट अस टेक, अब ये तो थोड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है लेकिन आपको मैं इसको ऑपरेशन समझाता हूँ इसका, ठीक है। सो लेट अस टेक ओवर हियर कि ये फ्लाई बॉल मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है। अब ये फ्लाई बॉल मैकेनिज्म क्या है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस इज बिकॉज दिस इज टोटली अ मैकेनिकल स्ट्रक्चर। बस होता क्या है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिकल लोड कम होता है, फॉर एग्जांपल कम हुआ, इलेक्ट्रिकल लोड हमें कम करना है, तो व्हाट वी नीड ओवर हियर, अगर इधर से हम इधर जाएं तो इधर के हम क्या चाहते हैं कि लोड कम हुआ, हमें इसको बंद करना है, राइट। हम चाहते हैं कि बंद हो जाए ताकि पानी फॉल ना करे पेल्टन व्हील के ऊपर और वो रोटेट ना करे, टू शट ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम दिस पेल्टन व्हील, राइट। तो व्हाट हैपेंस इज दिस मैकेनिज्म इज सच दैट व्हेन देयर इज अ लो लोड सिनेरियो या लोड घटा तो क्या होगा, दीज फ्लाई बॉल्स विल मूव आउटवर्ड, ठीक है। मैं एक कंडीशन आपको बता रहा हूं, जब हमारा लोड डिक्रीज हुआ, इलेक्ट्रिकल लोड डिक्रीज हुआ, दिस विल फॉल आउटवर्ड, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये देखो, ये दिस विल गो अपवर्ड्स, ठीक है। लेट मी ड्रॉ दिस, दिस विल फॉल आउटवर्ड, दिस विल गो अपवर्ड्स। तो ये क्या होगा, ये जो रॉड है ये ऊपर जाएगी और ये फलक्रम की वजह से ये नीचे जाएगा, ठीक है। जब ये नीचे जाएगा तो ये वॉल्व V2, ठीक है, विल ओपन, ये ओपन हो जाएगा। ये देखो ये नीचे चला गया, ये पूरे इसमें दो पिस्टन लगे हुए हैं, ये पिस्टन है, ये पिस्टन रॉड हो गई, तो दिस विल गो डाउन, दिस विल गो डाउन, दिस विल ओपन अप एंड दिस विल क्लोज। वो यहाँ पे दिस विल क्लोज एंड दिस विल ओपन अप, V2 विल ओपन अप एंड V1 विल क्लोज, ठीक है। और इधर से ये देखो, दिस वन इज बेसिकली पंपिंग द ऑयल, यहाँ पे ऑयल पंपिंग रेगुलरली चल रही है, ठीक है। तो when this one will open up, the oil will go towards in this chamber and it will exert the force on the face L of the piston. So क्या होगा कि ये पुश करेगा इसको आगे की तरफ। Are you getting my point? It will push in this direction, ठीक है। Similarly vice versa, उल्टा क्या होगा कि जब हमारा लोड इंक्रीज करेगा तो ये अंदर की तरफ भागेंगे, बॉल्स अंदर की तरफ भागेंगी, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ये पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा, ये ऊपर उठेगा, तो दिस विल गो अपवर्ड्स, ये ऊपर जाएगा तो V2 क्लोज हो जाएगा, V1 ओपन होगा। जब V1 ओपन होगा तो द ऑयल विल गो in this side of the chamber and it will exert force on the M face. तो उससे क्या होगा कि हमारा स्पीयर ओपन अप हो जाएगा and the water will start flowing and it will fall on the, किसके ऊपर गिरेगा, on the buckets of the पेल्टन व्हील के अंदर जो बकेट्स लगी हुई हैं उसके ऊपर फॉल करेगा, उसकी वजह से वो पूरा का पूरा टरबाइन रोटेट करना शुरू हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दी ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन ऑफ दिस गवर्नर, ठीक है। सिमिलरली गवर्नर, ये तो गवर्नर इंपल्स टाइप ऑफ टरबाइन का है, ऐसी रिएक्शन टाइप ऑफ टरबाइन का भी होगा। रिएक्शन टाइप ऑफ टरबाइन का आउटपुट क्या होना चाहिए, वहां पे गाइडिंग वेन्स को हम कंट्रोल कर रहे होंगे टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। I hope that you have got the gist of what I am trying to tell over here. Now I will be uploading the first assignment on the Google Classroom.